tilt of the building will takes place, and sometimes excessive settlement also takes place. So our aim is to stop it from sheer failure, and next is to control its settlement. Means whatever the things settlement is there, you should not cross the given settlement. It should not cross the given settlement. These are the two important criteria for designing any foundation. So then what is the purpose of the foundation? Why we provide the foundation? The main thing, it takes the load of the superstructure to distribute the weight of the structure over larger area, so that to avoid overloading of the soil beneath it. Means suppose a wall is there and you are transferring the entire load of the wall in a particular point, the soil will be stressed, overstressed. Stress ज़्यादा हो जाएगा. तो what we do is we construct a footing and distribute the load. So that is the first purpose of the foundation, to distribute the weight of the structure over larger area. Area जो नीचे रहेगा वो larger रहेगा, over larger area, so as to avoid overloading of the soil beneath. Okay. Second, to load the substratum evenly and thus prevent unequal settlement. To load the substratum evenly and thus prevent unequal settlement. अनइक्वल सेटलमेंट होने से बचना. देखिए सेटलमेंट अगर से थोड़ा ज्यादा भी हुआ, यूनिफॉर्म सेटलमेंट हुआ, तो बिल्डिंग को फाउंडेशन को उतना नुकसान नहीं होता. ऑफ कोर्स इट विल मेक हार्म बट नॉट दैट मच. लेकिन अनइक्वल सेटलमेंट हुआ, समझिए एक तरफ सेटलमेंट ज्यादा हुआ और दूसरी तरफ दूसरे एंड में कम हुआ, तो इसकी वजह से बिल्डिंग ओवरटर्न हो जाता. So that is why it is very difficult. So to avoid the unequal settlement. And third is to provide a level surface for building operations. So whenever you construct the building operation, surface should be level. That level surface you have to provide. And finally, to increase the stability of the structure by taking it into deep into the ground. तो फाउंडेशन को हम पूरा नीचे की तरफ लेकर जाके, डीप लेकर जाके भी we can do it. Okay, so these are the purposes of foundation. So what is foundation? आपको मालूम होना चाहिए. सेकंड, दो क्राइटेरिया, इसको ऐसा डिजाइन करना चाहिए कि दोनों क्राइटेरिया हमारे सेटिस्फाई हो जाए. एक शेयर फेल्यूर का, दूसरा एक्सेसिव सेटलमेंट का, और तीसरा these are the purpose of foundation. So these are the purpose of the foundation. Now the next question is, what is the choice of foundation? How you are going to, all these things will learn once again when we go for shallow and deep foundation. So choice of foundation, आपको यही choice कैसा करना है. देखिए आप पढ़ाई के लिए कॉलेज चॉइस करते हैं, खाने के लिए मेनू से चॉइस करते हैं, वैसा ही मुझे इस पर्टिकुलर ग्राउंड पर यही फाउंडेशन होना है. हाउ आई एम गोइंग टू डिसाइड इट. मुझे डीप फाउंडेशन लेना है, शैलो फाउंडेशन लेना है, ये कैसा डिसाइड करना है. तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि as far as possible go for shallow foundation. लोड्स देखो और उस हिसाब से गो फॉर शैलो फाउंडेशन. अगर से शैलो फाउंडेशन से प्लीज म्यूट कर लो सब लोग. अगर से शैलो फाउंडेशन से सपोज करो लोड नहीं ले सक रहा, ओवर स्ट्रेस हो रहा, देन यू डू सम ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स. So before going deep foundation, you apply ground improvement techniques. अगर से ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक से चलो आपका सॉइल स्ट्रांग हो गया, देन यू गो फॉर शैलो फाउंडेशन. बट इसके बाद भी लोड्स आपके ज्यादा हैं, सॉइल नहीं ले सकता, देन यू गो फॉर डीप फाउंडेशन. अच्छा, डीप फाउंडेशन में भी कौन से टाइप का है, हमको क्या वेल फाउंडेशन लेना है, काइजॉन्स लेने हैं, या ग्रिलेज फाउंडेशन लेना है, या पियर फाउंडेशन लेना है, या पाइल फाउंडेशन लेना है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन. हमको कौन सा फाउंडेशन सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज है. सो वी विल गो वन बाय वन क्राइटेरियाज. फर्स्ट इज सॉइल प्रोफाइल. आपके सॉइल का प्रोफाइल कैसा है, दिस मैटर्स अ लॉट. वीक है, स्ट्रॉन्ग है, या ब्लैक कॉटन सॉइल है, या रॉक है, हार्ड है. हाँ, आपका अगर से सॉइल रॉक हार्ड है तो एनी टाइप शैलो फाउंडेशन पे आप चला ले सकते काम, या लोड देख के आप डिसाइड कर सकते हैं शैलो फाउंडेशन कौन से टाइप का लेना है. लेकिन
अगर से आपका सॉइल वीक है तो यू हैव टू गो फॉर डीप फाउंडेशन. सो सॉइल प्रोफाइल मैटर्स अ लॉट. द फर्स्ट क्राइटेरिया to be selected for a foundation is soil profile. Soil profile matters a lot. Second thing is bearing capacity of soil. Second thing is bearing capacity of soil. Bearing capacity ज्यादा है तो कोई बात नहीं है, shallow foundation is okay, but bearing capacity कम है तो again you have to go for deep foundation. Type of structure, क्या टाइप का स्ट्रक्चर है. देखिए बिल्डिंग में तो लाइव लोड्स बहुत कम रहते, लोग आते जाते रहते. कितने लोग आएंगे एक बिल्डिंग में? 100 लोग आएंगे, 50 लोग आएंगे. लेकिन अगर से आपका एक हाईवे ब्रिज है, देखिए लाइव लोड कितना रहता, कितने मोटरसाइकिल ट्रक्स सब एक इधर से उधर घूमते रहते. तो इट आल्सो मैटर्स अ लॉट फॉर सेलेक्टिंग अ फाउंडेशन. व्हाट इज द टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर, कौन से टाइप का है स्ट्रक्चर, दैट आल्सो यू हैव टू डिसाइड. Soil profile you see, bearing capacity also you check, then you go for type of structure. Next is type of loads. किस किस टाइप के लोड्स आपके बिल्डिंग के ऊपर आ रहे. लाइव लोड है, लाइव लोड और डेड लोड तो कॉमन है, लेकिन कभी कभी विंड लोड्स रहते. बिल्डिंग आपकी हाई है या विंड एरिया ज्यादा है उधर, तो विंड लोड यू हैव टू कंसिडर. You have to go for wind load. Then अगर से hilly area है या तो snow loads. Okay, then seismic है, earthquake को prone होने वाला एरिया है तो seismic load. ऐसे type of loads के ऊपर भी you decide the foundation. You decide the foundation. Then settlement also, permissible settlement कितना है भाई. इस पंढरपुर के इस सॉइल के लिए इतना सेटलमेंट अलो है, तो सेटलमेंट क्या इससे ज्यादा होने वाला है या कम होने वाला है. चलो उससे कम, परमिसेबल सेटलमेंट से कम होने वाला है तो शैलो फाउंडेशन इज इनफ. लेकिन आपका सेटलमेंट ज्यादा है, जो लिमिट दिया, देन यू हैव टू गो फॉर डीप फाउंडेशन. उसके बाद एनवायरमेंटल एंड कंस्ट्रक्शन कंसीडरेशंस. हाँ, एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसा है, दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इकोनॉमी. ये सबसे बड़ा है. जो आपको बिल्डिंग, जिसका बिल्डिंग आपको कंस्ट्रक्ट करना है, उसकी जेब कैसा है ये आपको डिसाइड करना है. इकोनॉमी कैसा है. हाँ, तो ये मान, ये मतलब इसके ऊपर उसके पास पैसे कितने हैं, इसके ऊपर आप फाउंडेशन दे सकते हैं. किस टाइप का फाउंडेशन देना है, किस टाइप का फाउंडेशन आपको देना है. सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स व्हिच मैटर फॉर सिलेक्शन ऑफ फाउंडेशन. दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. तो कौन कौन से टॉपिक्स है. सबसे पहले सॉइल प्रोफाइल, वीक है क्या हार्ड है. सेकेंड बेरिंग कैपेसिटी, बेरिंग कैपेसिटी कम है ज्यादा है. बेरिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो शैलो फाउंडेशन, कम है तो डीप फाउंडेशन. देन टाइप ऑफ फाउंडेशन, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, क्या रोड है, बिल्डिंग है, ब्रिज है, डैम है. बिल्डिंग है तो कितने फ्लोर का है, that will be decided here. Type of structure, then types of loads, dead load, live load, wind loads, seismic load. ऐसे कौन कौन से टाइप के लोड्स आप इसके ऊपर आ रहे, that also you have to decide. Then permissible differential settlement, वहां का लिमिट कितना है सेटलमेंट का, कम है या ज्यादा है, वो भी आपको देखना है. The next is environmental and construction considerations, and last is economy. तो ये सभी factors are going to decide the type of foundation you are going to select. Then types of foundation, there are two types as I told you. One is shallow foundation, another is deep foundation. Shallow foundation उसको बोलते जहां पर फुटिंग का डेप्थ या फाउंडेशन का डेप्थ विड्थ ऑफ द फुटिंग के बराबर रहता या उससे कम रहता, या उससे कम रहता. Then it is called shallow foundation. Then it is called shallow foundation. डीप फाउंडेशन किसको बोलते, जहां पर डेप्थ ऑफ द फुटिंग विड्थ से भी ज्यादा रहता, डेप्थ ऑफ द फुटिंग विड्थ से भी ज्यादा रहता. सो इट इज कॉल्ड डीप फाउंडेशन. नाउ यू शुड हैव द आइडिया ऑफ what is shallow foundation, what is deep foundation. So this is all about what is foundation, what is the purpose of the foundation, and what type of choice you are having. What type of choice you are having, you are going to get. So this is a choice of foundation is also
very important. Then types of foundations are there. Types of foundations are there. I hope the things are very much clear to you now. What is foundation, what is purpose of foundation, what the choice of foundation आप कैसा करने जा रहे, और types of foundations कौन से हैं, type of foundations कौन से हैं. Okay, so next is factor of safety. I was deciding you. फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैं आपको बोला था, डेफिनेशंस आपको क्लियर नहीं है तो मैं एक बार और रिवाइज करता हूं, डोंट वरी अबाउट इट ऑल. सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैं आपको बोला था कि अगर से आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 ले रहे, अगर से आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 ले रहे, तो इट मींस दैट योर बिल्डिंग इज 2 टाइम्स सेफ. बिल्डिंग इज 2 टाइम्स सेफ. मैं आपको बस का एग्जांपल भी दिया. एक बस में अगर से 60 पैसेंजर आ रहे, आप 60 को ही लेके डिसाइड कर रहे तो ठीक है, इट्स ओके. लेकिन 60 से ज्यादा हो गए जब आपका बस फेल हो जाएगा. 60 ही बैठते ऐसा कोई गारंटी नहीं. सो व्हाट वी डू, वी डिसाइड टेक अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी. इफ यू टेक अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5, देन you have to design that bus for 90 passengers. You have to design that bus for 90 passengers. Got the idea? Suppose आपका बस 120 पैसेंजर्स को लेकर जाने वाला है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बिकम्स 2. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो फैक्टर है, so many times it will make safe. It will make safe. So now in while calculating bearing capacity, what type of factor of safety you are taking, that matters along. So some things has been given here. For structures where maximum loads are likely to occur often, like railway bridges and water tanks, factor of safety should be 3 to 4. फैक्टर ऑफ सेफ्टी शुड बी 3 to 4. इसका मतलब जहां पर लोड ज्यादा है, जैसे कि रेलवे ब्रिजेस, वाटर टैंक, एकदम स्टैटिक लोड बहुत आ रहा, रेलवे ब्रिजेस पे डायनामिक्स लोड बहुत आ रहे, तो वहां पर क्या करो आप, फैक्टर ऑफ सेफ्टी शुड बी 3 to 4. A factor of safety of 3 to 4 is very much needed when it is a railway bridge or water tank where the loads are maximum. Maybe ask these all such type of questions in MCQs. Second, for structures where maximum loads occur occasionally. For structures where maximum loads occurs occasionally, as in highway bridges, so the factor of safety should be 2.5 to 3.5. तो रेलवे ब्रिजेस के लिए कितना था, 3 to 4 लिए थे, लेकिन रोड ब्रिज, हाईवे ब्रिज के लिए हम कितना लेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, 2.5 to 3.5. 2.5 to 3.5. And for structures where maximum load are not likely to occur, as in the residential buildings, the factor of safety should be 2 to 3. तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 2 to 3 रखो, हाईवे ब्रिजेस के लिए कितना है, 2.5 to 3.5 रखो, और रेलवे ब्रिजेस के लिए 3 to 4 रखो. So these are the certain guidelines for taking the what I was telling, for taking the factor of safety. For taking the factor of safety. Next is, in general foundations in clays should be given a larger effect safety against shear failure than foundation in sands. इसका मतलब क्या है, क्ले में आपको ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी देना पड़ेगा सैंड से, क्योंकि वहां शेयर फेलियर होने के चांसेस ज्यादा है. So these are the different factors you should know while taking the factor of safety. So today what I told you, what is foundation, what is the purpose of foundation. Okay, after knowing the purpose of foundation, what I told you, choice of foundation, एक foundation आप how you are going to decide.
एक फाउंडेशन आप कैसा डिसाइड करने वाले हैं. एंड देन आई टोल्ड यू टाइप्स ऑफ फाउंडेशन. Types of foundation. Got it? So then some standard values I gave you for deciding the factor of safety. Then I give you the that is for railway bridges 3 to 4. Railway bridges 3 to 4. For highway bridges 2.5 to 3.5. 2.5 to 3.5. And for residential buildings it is 2 to 3. And remember, for clays the factor of safety should be more than the foundation on sand. The factor of safety should be more than on sand. So these are the things I think are very much clear to you now. So what is foundation? What is the purpose of foundation? How you are going to decide a particular foundation choice? And then what factor of safety, what is the number of, what factor of safety you are going to give for different buildings, residential building, highway building, bridges and railway bridges. So itna cheezein yaad rakho aap. Then we will go now, what happens, how the soil is going to fail. How the soil is going to fail. हम अब तक बोल रहे कि शेयर फेलियर हो रहा, शेयर फेलियर हो रहा. तो ये शेयर फेलियर एक्चुअली है क्या और कितने टाइप के शेयर फेलियर है, कितने टाइप के शेयर फेलियर है. So for your syllabus, I mean for here, there are 3 types of shear failure. One is general shear failure, second is local shear failure, third is punched shear failure. So the failure of soil takes in 3 types, 3 patterns. One is general shear failure, second is local shear failure, and third is punched shear failure. Punched shear failure. Punched shear failure. तो एक्चुअली शेयर फेल्यूर पंच्ड में क्या है, जनरल में क्या है, लोकल में क्या है, आपको मैं एक रफ आइडिया देता हूं. ऑफ कोर्स जब आपका बेयरिंग कैपेसिटी कम रहता द सॉइल इज गोइंग टू फेल. लेकिन फेलियर भी अलग अलग टाइप के. देखिए आपका सॉइल अगर से स्ट्रांग है, क्ले स्टिफ है और सैंड डेंस है, तो वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होता, तो वहां पर जो भी फेल्यूर हो जाएगा वो रहेगा जनरल शीयर फेल्यूर. वो क्या रहेगा, जनरल शीयर फेल्यूर. लेकिन याद रखो अगर से आपका सॉइल मीडियम है, रेजिस्टेंस उतना नहीं कर सकता और भी कम है, तो यहां पर रहेगा लोकल शीयर फेल्यूर. लोकल शीयर फेल्यूर. लेकिन आपका सॉइल ऐसा है कि कोई रेजिस्टेंस नहीं कर सकता, बेयरिंग कैपेसिटी बहुत बहुत कम है, तो आप जो भी बिल्डिंग रखेंगे वो नीचे कंटिन्यूअसली सेटलमेंट होते जाएगा, धंसते जाएगा straight without causing any problem for the neighboring soil. So this is called punched shear failure. So this is called punched shear failure. तो याद रखो general shear failure, local shear failure, and then punched shear failure. Punched shear failure. You should know all these things. So before going that one, what happens, how the soil and load deformation works. So what is the relation between, whenever a load is applied, what happens to the soil. देखिए एक सॉइल में, और मैं आपको जनरली बताता हूँ, ये जनरल कुछ चीजें आप बहुत याद रखो, ये एमसीक्यूज में, इंटरव्यूज में, थ्योरी तो आप रट के लिख के पास हो जाते हैं एग्जाम, मार्क्स भी आपको अच्छा आते, लेकिन आपको कुछ क्या चीजें मालूम होना चाहिए ना. तो एक डिफरेंस क्या है, आप लोड अप्लाई कर रहे एक सॉइल में और एक स्टील में या कंक्रीट में, क्या डिफरेंस है. तो मैं आपको मेजर डिफरेंस बताऊं कि स्टील जो रहता वो सॉलिड रहता, ओके, उसमें कोई वाइड्स नहीं रहते, जबकि हमारे सॉइल में वाइड्स रहते. याद रखो सॉइल में क्या रहते, वाइड्स रहते. और ये जो वाइड्स है सॉइल में, जो भी वाइड्स रहते, अगर से पूरी तरह से खाली है वाइड्स, तो वो सॉइल रहता ड्राई सॉइल. इट इज कॉल्ड ड्राई सॉइल. लेकिन अगर से पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है, then it is saturated soil. Then it is saturated soil. What it? Saturated soil.
और जो दूसरा है, अगर से पार्शियली है, मतलब आधा ड्राई है आधा पानी है, तो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। तो हम कभी भी जब लोड अप्लाई करते, लोड सॉइल डिफॉर्मेशन रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी हम सॉइल पे लोड अप्लाई करते, स्टील में क्या होता, व्हेन यू अप्लाई द लोड, वहां पर कंप्रेशन हो जाता और चेंज इन लेंथ इमीडिएटली इलास्टिसिटी हो जाता। लेकिन सॉइल में ऐसा नहीं होता, सॉइल बहुत कम इलास्टिक है कंपेयरिंग टू स्टील। और अबव ऑल सॉइल इज विथ वाइड्स, जब भी आप लोड लगाएंगे पहले वाइड्स खाली हो जाएंगे, दब जाएगा सॉइल आपका, सॉइल दब के डेंस हो जाएगा, फिर स्ट्रेंथ बढ़ेगा, वो अलग बात है। एंड दिस प्रोसेस, जो वाइड्स में से आप एयर्स निकाल रहे, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्शन। अगर से पानी है और पानी चला जा रहा, अगर से पानी है और पानी चला जा रहा, सो इट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। तो याद रखो, स्टील और सॉइल में क्या फर्क है? तो सॉइल में क्या है, वाइड्स है, और स्टील में सब डेंस है। होमोजेनियस मटेरियल है, स्टील सारा सेम है। यहां पर ऐसा नहीं है, थ्री फेज सिस्टम है। ये सॉइल क्या है, थ्री फेज सिस्टम है। आपको सॉइल मिलेगा, पार्टिकल्स, उसके बाद वाइड्स रहेंगे, वाइड्स में पानी भी मिलेगा, कभी एयर भी मिलेगा। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सॉइल एंड स्टील। और स्टील में आप लोड अप्लाई करते हो इमीडिएट ले लेता, लेकिन सॉइल में क्या हो जाता, पहले वाइड्स लोड ले लेते आपका। whatever the load you have applied, it is taken by voids। उसके बाद voids दब जाते, अगर से एयर है तो एयर निकल जाता, पानी है तो पानी निकल जाता, एयर है तो एयर निकल जाता, पानी है तो पानी निकल जाता। अगर से एयर निकल जाता तो उसको बोलते कॉम्पैक्शन, पानी निकलता जाता तो इट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन, इट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। सो इसका मतलब क्या है कि आप स्टील को प्रिडिक्ट कर सकते, लोड डिफॉर्मेशन सॉइल को प्रिडिक्ट कर सकते। आप एक ब्यूटीफुल कर्व बनाते, देखो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम बनाओ, एक स्ट्रेट लाइन आता, फिर पैराबोलिक कर्व आता है, गैप आता, तो आप एक अच्छा सा कर्व बनाते, स्ट्रेस और स्ट्रेन का एक कर्व बना सकते स्टील में। बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ सॉइल, इन केस ऑफ सॉइल। ओके, so as we know from the basic mechanics, all materials will deform, is subjected to load, so will soil. However, unlike the more homogeneous materials such as steel and other metals, the load deformation relationship in soil is not neatly as well defined or predictable. इसका मतलब क्या है कि जैसा होमोजेनियस मटेरियल दूसरे है स्टील वुल, उस तरह हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, और वहां जैसा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम बना है वैसा सॉइल में नहीं बना सकते। ये वेल डिफाइंड भी नहीं है और प्रिडिक्टेबल भी नहीं है कंपेयरिंग टू स्टील, कंपेयरिंग टू स्टील। Got it? Next thing is, in soil, the early phase of deformation is primarily attributed to the classification of densification of the stratum as a result of the reduction in voids. तो यहां पर बोलने का मतलब क्या है कि जब भी आप लोड पहला डालेंगे तो इट विल टेकन बाय वाइड्स। सो सच इज नॉट केस विथ स्टील, such is the not case with steel. But here what happens, the load is taken by force, load is taken by force. As the load is increased, a further increase in the deformation takes, but at a somewhat more rapid rate. इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वाइड्स रहने से पहले रिडक्शन ऑफ वाइड्स हो जाएगा, उसके बाद फिर आप लोड बढ़ाएंगे तो डिफॉर्मेशन ज्यादा होता और रेट डिफॉर्मेशन का भी बढ़ता है, रेट डिफॉर्मेशन का भी बढ़ जाता है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉइल एंड स्टील। Okay, so figure shows a general pattern of load deformation curve. हाँ, तो यहां पर क्या होता मालूम है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब सॉइल, देखिए प्लीज ये फिगर देखो, मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन अभी बाद में करता हूं। जब मैं तेरस्कीज जनरल बेयरिंग कैपेसिटी का इक्वेशन डिराइव करता हूं, तो हम क्या मान के चलते हैं कि सॉइल पे जब भी लोड पड़ेगा ये जनरल शेयर फेल्यूर ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा, पहले लोड बढ़ते ही है इलास्टिसिटी आएगा और यहां पर एक ट्रायंगल बनेगा। व्हाट इट,
ये जो भी है, दिस इज कॉल्ड जोन 1 एंड दिस इज द इलास्टिक जोन. दिस जोन इज इलास्टिक जोन. उसके बाद और दो जोन हो जाते हैं. यहाँ पर प्लास्टिक जोन होता. यहां तक आने के बाद ये सॉइल क्या करता, नेबरिंग सॉइल के ऊपर स्ट्रेस डालता. पहले तो खुद लेता, सुपरस्ट्रक्चर का लोड सारा पहले खुद लेता, और खुद लेने के बाद जब इलास्टिसिटी खत्म हो जाती तो वो बाजू वाले सॉइल के ऊपर लोड डालता. तो ऐसे दो पेयर्स बनते. उसके बाद और भी लोड आप बढ़ाए तो सॉइल क्या हो जाता, फाउंडेशन मतलब ग्राउंड लेवल के भी ऊपर आ जाता. एंड दिस इज कॉल्ड हेविंग. दिस इज कॉल्ड हेविंग. तो यहां पर क्या हो जाता, ऐसा वेल डिफाइंड एक फिगर आता. पहले ट्रायंगल आता, फिर ये दो आते, फिर ऐसा स्पाइरल आके ये ऊपर जाता. सो दिस इज द जनरल shear failure ऑफ अ शॉलो फाउंडेशन. बट क्या जनरली ऐसा होता है? ऐसा एक ट्रायंगल आता फिर पैराबोला बनता, ऐसा एक्चुअली नहीं होता है. एक्चुअली क्या है, हमको एक अप्रोक्सीमेट फिगर आता. व्हेनेवर यू अप्लाई द लोड, व्हेन यू अप्लाई द लोड, सो यू विल गेट, ऐसा ऐसा नीचे की तरफ जाता थोड़ा सॉइल, ऐसा थोड़ा नीचे की तरफ आता. इट इज नॉट एग्जैक्ट ट्रायंगल ज्योमेट्रिकली, बट हम उस पार्ट को क्या करते, वी विल टेक इट एज we will take it as a triangular load of elasticity, and this is called zone 1. मतलब whenever you apply the load, soil is going to fail in elasticity with a triangle. pressure diagram इसका कैसा बनता, triangle. pressure diagram इसका कैसा बनता, triangle. Now what happens after getting this load, ये जो surrounding soil है ना, ये स्ट्रेस होना शुरू हो जाती है, ये फुटिंग के नीचे के बाजू वाले. तो ये क्या करता, अपना जो भी लोड आता ये बाजू वाले के ऊपर डाल देता, बाजू के सॉइल के ऊपर. और बाजू के सॉइल भी स्ट्रेस लेते इफेक्टिवली, एंड इट गोज अप टू द ग्राउंड, एंड आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड थोड़ा ऊपर भी जाता प्रेशर. सो इट इज कॉल्ड हेविंग. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आई मीन इज लोड सेटलमेंट कर्व. तो लोड आप अप्लाई करते हैं, आपको ट्रायंगल ही नीचे नहीं मिलता ऐसा. एक्चुअली उस वो ऐसा ज्यादा रहता, फिर कम कम आते पॉइंट पे आता, ये ट्रायंगुलर शेप में मिलता है, ट्रायंगुलर शेप में मिल जाता है उसको. गॉट इट? सो दैट्स व्हाई दिस इज अ ट्रायंगल, दैट्स व्हाई दिस वन इज ट्रायंगल. सो व्हाट आई वाज टेलिंग वाज व्हाट आर द मोड्स ऑफ shear failure. So one is general shear failure, second is local shear failure, third is punching shear failure. तो जनरल shear failure में क्या होता है मैं आपको बताता हूं. आपको पहले जनरल याद रखो, आप बाद में आप रट के लिख के पास होते हो, वो नहीं. जनरल shear failure एक्चुअली है क्या? जनरल shear failure मतलब क्या है, ये फुटिंग है आपका, ये फुटिंग है और यहां पर आप लोड अप्लाई कर रहे हैं. व्हेन यू अप्लाई द लोड सेटलमेंट होता, फिर अप्लाई करो फिर सेटलमेंट होता, फिर अप्लाई करो लोड फिर और ज्यादा सेटलमेंट होता. लेकिन कुछ देर के बाद यू विल गेट अ पॉइंट वेयर even if you apply load or if you don't apply the load, the settlement continuously शुरू हो जाता. मतलब वहां पर लोड ना भी अप्लाई करो आप तो सेटलमेंट होता. एंड दिस इज शोन इट बाय अ ग्राफ. दिस ग्राफ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जनरली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. तो लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व, ये लोड ले लो आप, ये सेटलमेंट ले लो. तो जनरल shear failure के लिए कैसा होता है, देखो जनरल shear failure जो है, पहले लोड अप्लाई करो कुछ नहीं होता, फिर लोड अप्लाई करो फिर कुछ नहीं होता, फिर लोड अप्लाई करो फिर कुछ नहीं होता. लेकिन 5-6 के बाद व्हेन यू अप्लाई द लोड, आप थोड़ा सा सेटलमेंट बताते हैं. यहाँ पर लिटिल बिट सेटलमेंट टेक्स प्लेस, लिटिल बिट सेटलमेंट टेक्स प्लेस. तो इस सेटलमेंट कैसा होते जाता, जनरल shear failure में लोड अप्लाई करे जब सेटलमेंट, लोड अप्लाई करे जब फिर सेटलमेंट, अगेन सेटलमेंट इज देयर, यू विल रीच अ पॉइंट, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम लोड पॉइंट. मैक्सिमम लोड पॉइंट मतलब इसके बियॉन्ड आप लोड अप्लाई कर ही नहीं सकते. और यहां पर अप्लाई करे बाद आपको इलास्टिसिटी मिलता. उसके बाद आप लोड अप्लाई करो या मत करो, तो उसके बाद ये डीप सिंक होने स्टार्ट हो जाता, फाउंडेशन अपने आप कंटिन्यूस होता. दिस इज कॉल्ड जनरल shear failure. और याद रखो जनरल shear failure उतना वीक नहीं है जितना पंच shear failure का साइल रहता. तो जनरल shear failure is not that much weak, not that much weak
or that much the things. So now coming to the so this is the load soil deformation. Okay, so it will take like this. बाद में क्या होता, पहले ट्रायंगल बनने के बाद ट्रायंगल तो बन ही जाता, उसके बाद साइड से पैराबोलिक शेप के बन के आप ऊपर ले जा सकते हो उसको. You can take upwards, you can take upwards. Got it? So now the things which I taught you is what is foundation, what is the purpose of foundation, how you are going to decide or the particular type of foundation is needed here. हाँ, तो उसके लिए ये सभी पॉइंट्स देखना है आपको. सॉइल प्रोफाइल क्या है, बेयरिंग कैपेसिटी कैसा है, स्ट्रक्चर का टाइप क्या है जो आप कंस्ट्रक्ट जा रहे हैं, और टाइप्स ऑफ लोड्स कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ लोड्स कौन कौन से हैं, और परमिसिबल सेटलमेंट कितना है, फिर एनवायरमेंटल कंडीशन कैसा है. ये आप जितना ज्यादा मतलब सोचेंगे, उसको करेंगे, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स. करेक्ट? सो नाउ what type of foundation you are going to decide, different criteria are there. So these criteria I have given you: soil profile, bearing capacity, everything I told you. Then I told you about types of foundation. After type of foundation, shallow foundation and deep foundation, I told you what are the standard values of factor of safety. इसके बाद 2-4 मिनट का रेस्ट ले लो आप, फिर रिजॉइन कर लो. Okay, so then different factor of safeties are there. For railway bridges we take 3 to 4, for highway bridges we take 2.5 to 3.5, and next is for residential building को 2 to 3 लेते, residential building को 2 to 3 लेते. Then I told you about different types of failures are there, that I will take even after this also, in the next class also. What is general shear failure, what is local shear failure, what is punctual shear failure. Punctual shear failure.